hello all. Welcome back to your English class. We were doing our topic paragraph writing from our grammar portion, right? Hope everybody is uh, completed this, the work I had given earlier. So, who will give a recall? Who will give a recall? Any one of you? Jahanvi, have you written the yesterday's work? Have you written it? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Are there students in the class? Yes, ma'am. So what I'm asking, any one of you give me a recall of the chapter. जो टॉपिक है इसका रिकॉल दीजिए मुझे. What we have done yesterday. Ma'am, a paragraph is a logical group of sentences. Yes, very good. Ma'am, focused on central idea. Very nice. While you are writing it, while you are writing a paragraph, you have to focus on your central idea. आपको क्या करना है? फोकस करना है हमेशा अपना जो आइडिया है, आपका जो थीम है, ऑन व्हाट यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, उसी के ऊपर आपको कंसीडर करना है, उसी को फोकस करना है. वेरी गुड. एंड यू हैव टू मेक लॉजिकल सेंटेंसेस. आपकी जो सेंटेंसेस हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए. तो अ ग्रुप ऑफ लॉजिकल सेंटेंसेस राइट इज कॉल्ड अ पैराग्राफ. वेरी गुड. Now how you have to write it? What is the format? What is the format? Yes. Ma'am, first paragraph में ma'am introduction. Exactly. आपको क्या करना है? Introduction देना है. Then Ma'am detail. you have to write in detail. Relevant. Yes. Additional information. Additional information. Conclusion. And conclusion. Dash में conclusion. Conclusion. So it is. This is like that only detail. डेवलपमेंट करना है आपको पैराग्राफ का. राइट. वेरी गुड. सो I am having a paragraph for you people. You have to take a screenshot of it. Fine. And here now in the class only you will understand how I am explaining it. Fine. Take a screenshot of this. Or if you can write it at the time, at the moment you can do it. Yes. Okay. तो देखिए अभी पैराग्राफ लिख रहे हैं आप. एंड व्हाट इज द टॉपिक? व्हाट्स द टॉपिक? टॉपिक जो है आपका वो क्या है पैराग्राफ राइटिंग में? विलेज फेयर. यू हैव टू Village fair. you have to write a paragraph on village fair. Fine everyone. So what is the central idea of your paragraph? You have to write about village fair. Good. So Yes, ma'am. first of all you will give the introduction. जब आप introduction दे रहे हैं then what are you writing? A village fair is often a small fair held on a particular occasion, right? As you are having the limits of words, आपको क्या करना है? बहुत expansion नहीं करना है. आपको बहुत ही लिमिटेड शब्दों में अपनी पूरी बात जो है वो क्या करनी है? पैराग्राफ में लिखनी है रिगार्डिंग टू योर टॉपिक. आपका जो टॉपिक है उसके लिए. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो विलेज फेयर है वो एक छोटा फेयर होता है जो कि पर्टिकुलर ओकेजन्स पे होता है. राइट. जिसको कब किया जाता है, कब लगाया जाते हैं विलेज फेयर? जनरली जबकि कोई पर्टिकुलर ओकेजन होता है. Then it is held in an open space. आपने इंट्रोडक्शन में ये भी बता दिया कि इसको ओपन स्पेस में किया जाता है because
देयर इज अ क्राउड ऑफ पीपल जिनको कि आपको मैनेज करने के लिए ओपन स्पेस जो है वो चाहिए. सो दैट्स व्हाई यू हैव रिटन कि वो जो उसका वेन्यू है वो जनरली किस तरीके का होता है, ओपन स्पेस होता है. So a village fair is often a small fair held on a particular occasion. It is held in an open space. Now, people from adjoining villages gather there. आस-पास के जो लोग हैं, न केवल हमारे विलेज के बल्कि आस-पास के विलेज के जो लोग होते हैं वो भी इनमें एकत्रित होते हैं. गैदर यानी कि इकट्ठे होते हैं. राइट? Clear to everyone? Yes, ma'am. Padam Yes, ma'am. Seni, you are getting? Padam Seni, are you getting it? Yes, ma'am. That's fine. आगे आप लिख रहे हैं. अब आप इसको डिटेल कर रहे हैं. इसको डेवलपमेंट जो पोर्शन है आपका, आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग विलेज फेयर को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? जनरली देयर इज अ रिवर. यहाँ पर एक रिवर है गांव में. दे बाथ इन द रिवर एंड वर्शिप सम गॉड्स और गॉडेसेस. एज वी आर टॉकिंग अबाउट अ विलेज फेयर, हम विलेज फेयर की बात कर रहे हैं. हम आपकी सिटी में लगाए हुए किसी ग्लैमरस उसकी बात नहीं कर रहे हैं फेयर की. राइट? तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जनरली विलेज के लोग जो होते हैं दे बिलीव इन गॉड और गॉडेसेस. राइट? तो ओकेजन्स पे किया जाता है. और यहाँ पर एक रिवर बहती है जिसमें कि गांव वाले जो है वो आकर के स्नान करते हैं. राइट? एंड ऑल्सो दे वर्शिप सम गॉड्स और गॉडेसेस. वो कहते हैं कि कुछ जो वो देवी देवता है, भगवान जो हैं, उनके वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं. राइट? चलिए. एंड इट इज कंसीडर्ड वेरी होली टू बाथ इन अ रिवर. आपको पता है, सबको पता होगा कि नदियों में नहाना हमारे लिए पवित्रता की वो माना जाता है. राइट? Yes, ma'am. Men, women and children from villages gather there. अलग अलग विलेजेस से और हमारे खुद के विलेज के जो मेन, विमेन और बच्चे हैं वो सब इस मेले में इकट्ठे होते हैं. राइट? नेक्स्ट यू आर राइटिंग स्टिल यू आर ऑन द पॉइंट जिसमें कि आप क्या कर रहे हो? डेवलपमेंट कर रहे हो. डेवलपमेंट या फिर जो आपका डिटेल है उसी पे आप कंटिन्यू कर रहे हो. टेम्परेरी शॉप्स आर देयर. वहाँ पर टेम्परेरी शॉप्स जो है वो लगाई जाती हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द फेयर और मार्केट ऑल्सो? कई बार आपने देखा है कि आपके विलेज में मार्केट भी लगाया जाता है एक छोटा. सो यू हैव सीन सो मेनी टेम्परेरी शॉप्स देयर. टेम्परेरी शॉप्स देखे हैं ना सबने? Yes, ma'am. दिस इज क्लियर Yes, टू ma'am. यू? सबने देखे हैं. तो ये कह रहे हैं कि टेम्परेरी शॉप्स जो है वो भी वहाँ पर होते हैं मेले में. विलेजर्स बाय थिंग्स यूजफुल टू देम. और विलेजर्स जो होते हैं वहाँ पर चूंकि हर तरीके की चीज़ें आती हैं तो वो अपने यूज़ के लिए जो उनकी भी यूजफुल चीज़ें हैं वो वहाँ से परचेज करते हैं. What generally they do in a fair? They bath in the river. They worship gods and goddesses. Fine. They enjoy shopping. उनकी यूजफुल चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पे खरीदते हैं. Even they entertain themselves. अपने आप को entertain भी करते हैं. How? With the eatables and the kids enjoy आपकी toys and all that. Right? आगे देखिए. A number of shops of sweets are there. आपने बता दिया कि बहुत सारी स्वीट्स की शॉप जो है वो भी वहाँ पर होती हैं. राइट? अब आपने यहाँ पर अपने पैराग्राफ का जो डिटेल है या फिर जो डेवलपमेंट है यू स्टॉप हियर. आपको लग रहा है कि मेरे वर्ड्स की लिमिट जो है वो कंप्लीट हो गई है. इफ़ यू आर राइटिंग कि यहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स की शॉप है, इट मीन्स इट अंडरस्टूड दैट लोग जो हैं वो स्वीट खरीदते हैं और खाते हैं. फाइन.
अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपने अपना कंक्लूजन जो है वो देना है, आपको अपना कंक्लूजन देना है। तो लास्ट की 2 लाइंस में आपने क्या किया, कंक्लूजन जो है कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन दे दिया आपने। कंक्लूजन किस तरीके से दिया आपने, सच अ फेयर, इस तरीके के फेयर इज यूजफुल फ्रॉम मैनी पॉइंट्स ऑफ व्यू, बहुत ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरीके के जो फेयर होते हैं वो यूजफुल होते हैं। कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ इट, किस तरीके से यूजफुल होते हैं ये? मैम एंटरटेनमेंट उन जरूरत का सामान एंजॉयमेंट के लिए। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। द फर्स्ट थिंग कि आपका एंटरटेनमेंट होता है विच इज वेरी असेंशियल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को भी जब हमारे हाँ एग्जैक्टली वी नीड रेस्ट एंड एंजॉयमेंट। सो वाइल वी आर इन अ फेयर हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। वेरी गुड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपने बताया कि उनको बहुत सारी यूजफुल चीजें मिल जाती हैं। रिमेम्बर दिस जब यहाँ पे अलग अलग शॉप्स लगाई जाती हैं तो ये सारे जो वेंडर्स होते हैं ये सिटी जाकर के और बहुत सारी चीजें लेके आते हैं विच आर नॉट अवेलेबल जनरली इन द विलेज एरिया, राइट। तो जब यहाँ पे उनकी यूजफुल चीजें आती हैं तो वो वहाँ से अपनी यूजफुल चीजों को खरीद लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। उसके अलावा हमारे आपने पढ़ा देखा इसमें कि वो दे टेक बाथ इन द रिवर और वर्शिप करते हैं। सो इस तरीके से हमारी जो कस्टम्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, कैरिड फॉरवर्ड होती हैं, राइट। हम जो कस्टम्स करते हैं हमारे हिंदू धर्म में जो भी कस्टम्स हम कर रहे हैं वो भी क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। वहाँ पे लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आपने बता दिया कि सच अ फेयर इज यूजफुल फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू। आपने कह दिया बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू में ऐसे जो फेयर हैं वो बहुत क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो आपने एक सिंपल सी लाइन में अपना बहुत कुछ कह दिया, यानी कि अपने वर्ड्स की लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपने डिटेल जो है वो दे दिया, लोगों के दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो डाल दिए। आफ्टरवर्ड्स यू आर राइटिंग इन अ कंट्री लाइक आवर्स इट इज़ वेरी यूजफुल एंड कॉमन। हमारी जैसी कंट्री में ये बहुत ही ज़्यादा, हमारी जैसी कंट्री माने जो कि कैसी कंट्री है, मतलब डेवलप्ड नहीं है, हम अभी पूरे अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं। हमारे यहाँ पर अभी भी विलेजेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो क्या है हमारे यहाँ पर इस तरीके, और उसके साथ साथ हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें हम बहुत सारी रिचुअल्स में इंडल्ज हैं, बहुत सारे यानी कि जो ब्रदरहुड है वो भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हम एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो इस तरीके के फेयर्स जो होते हैं वो हमें इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं कि गैदरिंग होती है, हमारे रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे एक संग हो जाते हैं, है ना। उसके अलावा दोज हु कैन नॉट एंजॉय और कैन एंटरटेन बिग फेयर, जहाँ ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, वो इस तरीके के स्मॉल फेयर्स में आ सकते हैं, राइट। तो आपने कह दिया कि हमारी इंडिया जैसी कंट्री में ये बहुत यूज़फुल है और उसके साथ साथ ये कॉमन भी बहुत है। यूज़फुल इसलिए कि मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए वो सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं इसमें, और कॉमन इसलिए है क्योंकि जनरली हम इस तरीके के ओकेजन्स हमारे यहाँ आते रहते हैं और हम देखते रहते हैं। बिल्कुल, वेरी करेक्ट। और हम इस तरीके के ओकेजन्स पे ये सब करते रहते हैं, राइट। अपना सोशल लाइफ को एंजॉय करने के लिए हम ऐसा करते रहते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर पैराग्राफ राइटिंग। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेरी और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। आपको पता लग गया कि आपको कैसे लिखना है आपका पैराग्राफ, आपने किस तरीके से वंस अगेन आई एम रिकॉलिंग किस तरीके से करना है कि आपने लिखा कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है, विलेज फेयर है। उसके बाद में आपने क्या कर दिया, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद में आपने क्या किया, उसको डिटेल्ड कर दिया, आपने बता दिया कि उस फेयर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आफ्टरवर्ड्स आपने क्या किया, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है, सो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो, ये तो आपने जनरली बता दिया कि शॉप्स होती हैं, लोग चीज़ें खरीदते हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं, टॉयज़ की दुकानें हैं। सो ये तो एक जनरल एक्सपेंशन हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं
कि कौन कौन से फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. लाइक इन राजस्थान वी आर हैविंग द शीतला माता विलेज फेयर, वेरी इम्पोर्टेंट. करेक्ट? एम आई दशहरा राइट? का मेला. एम आई राइट? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. और कुछ बताइए, और कुछ. If मैम we- दशहरा का मेला. दशहरे का मेला इज वेरी कॉमन एंड कंपल्सरी लाइक, है ना, कंपल्सरी लाइक है, सब जगह होता है. दो दो तीन तीन एक ही सिटी में तीन तीन चार चार जगह मेला लगाया जाता है. वेरी गुड. इसी तरीके से इफ वी गो टू थ्रू द बिहार स्टेट, तो जो बिहार स्टेट है आपका, वहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे देखते हैं आपके छठ का जो मेला है वो लगाया जाता है. उसके अलावा वी आर हैविंग सो मेनी ट्रेडिशनल festivals like Bachwaras and some important which consider to be very important. वो सारे हम जो है वो लगाते हैं. तो हम क्या कर सकते थे, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे थे, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप एग्जाम्पल्स दे सकते थे. जैसे कि आपका हो गया शीतला अष्टमी फेयर इन राजस्थान, राइट. उसके अलावा एक आपने देखा होगा कि पुष्कर में भी लगाया जाता है. पुष्कर में कौन सा लगाया जाता है, जो एनिमल से रिगार्डेड होता है ना, कौन सा बोला जाता है वो फेस्टिवल. सो दिस इज योर जॉब फॉर टुडे. यू हैव टू फाइंड इट आउट कि पुष्कर में कौन सा मेला है जो हर साल आयोजित किया जाता है. राइट एवरीवन? हाँ जी. यस. मैम आप क्या पढ़ा रहे हो? Who is there? Who is मैम there? मैं Who is asking? मैम Yash, why are you so late, beta? We are continuing our topic paragraph writing. So take a screenshot of it. आप screenshot ले लीजिए. Everybody has to take a screenshot. सब लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लिया था. हाँ ठीक है, दैट्स फाइन. यस मैम. दैट्स फाइन. मैम कर रहा है कैसे? हाँ, इसको यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स. इसको Okay, ma'am. आप कर लीजिए. एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस इज वन एग्जांपल फॉर यू कि आपको किस तरीके से करना है. फर्स्ट वाला पेज दिखा दो. इफ सम अदर टॉपिक्स, वेट फॉर अ सेकंड. जिन्होंने सेकंड का नहीं लिया वो ले लीजिए. मैं आपको बता रही थी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना. आप इसके बता सकते हो कि कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन से फेयर होते हैं. तो ये सेकंड पेज ले लिया सबने? यस मैम. फर्स्ट पेज भी ले लीजिए. ओके मैम, ले लिया. डन? मैम ले. यस मैम. That's good. Okay, so I hope everybody is clear with this कि आपको पैराग्राफ राइटिंग जो है वो किस तरीके से करना है. एंड में आकर के आपने क्या दे दिया, आपने कंक्लूजन दे दिया, आपने अपने जो विचार थे, अपने जो थॉट्स थे वो दे दिए. यहाँ पर आपने कोई एडवाइस नहीं दी है. मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन जब आप कर रहे हो तो आप अपने थॉट्स दे सकते हो, अपनी एडवाइस दे सकते हो, या फिर आप वार्निंग अगर कुछ है, अगर कोई है कंट्री को मैसेज कर रहे हो, लोगों को कॉमन मैसेज कर रहे हो, तो वो भी आप दे सकते हो. बट आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, आपने सिंपल अपने जो पैराग्राफ है उसको वाइंड अप कर दिया है. आपने बता दिया कि सच फेयर इज यूजफुल फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू. इन अ कंट्री लाइक आवर्स इट इज़ वेरी यूजफुल एंड कॉमन. ये कह करके आपने अपना पैराग्राफ जो है उसको कवर कर दिया है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन पैराग्राफ राइटिंग. द टॉपिक इज कवर्ड, राइट. इफ हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. Clear to everyone? यस मैम. Is this clear to Yes, everyone? ma'am. सबको पता है कि पैराग्राफ का मीनिंग क्या है? ये इट इज अ ग्रुप ऑफ लॉजिकल सेंटेंसेस, राइट. सेकेंड आपने बता दिया कि why it is important to give a brief information. जब आप डिटेल में नहीं दे रहे हैं तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आप. सेकेंड थिंग आपने जो पढ़ी है वो इसका क्या पढ़ा है आपने, कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट में आपने बता दिया कि यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन फर्स्ट, देन यू हैव टू डेवलप द सेकेंड पैराग्राफ जिसमें आप डिटेल बता रहे हैं, देन यू हैव टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ यू आर हैविंग, और फिर उसके बाद में आप कंक्लूजन दे रहे हैं जिसमें आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, आप अपने थॉट्स रख सकते हैं,
और अगर कोई वार्निंग भी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्यों इस चीज़ के साथ चलना ज़रूरी है या क्यों इस चीज़ को अपने सोसाइटी से कट ऑफ करना ज़रूरी है, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन टॉपिक कि आप कंक्लूजन में किस तरीके की चीज़ें लिख रहे हैं, राइट। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Everybody has taken a screenshot. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine, that's all for today. मैं एग्जाम में Yes. थैंक्स फॉर इनविटेशन वाला भी आएंगे क्या? Which one? थैंक्स फॉर इनविटेशन और फॉर्मल थैंक्स की। No. If you are asking for that, then you have to write it, ओके मैम। right? यस मैम।